Hi, this is Vaishnavi Gupta, hoping you're happy and healthy. Welcome or welcome back to my channel. So it's weekend right now. Tomorrow is Monday and I have my UT2 start like tomorrow say. And for the first time in the history of my school, we are going to have paper like Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, yes, continuously. And chapters कम आ रहे सी 3 चैप्टर आ रहे हैं like planning, staffing, organizing बस. बिजनेस स्टडीज़ में अकाउंट्स में कैश फ्लो स्टेटमेंट्स और फंडामेंटल्स आ रहा है बस. इंग्लिश में ग्रामर वगैरह और 2-3 चैप्टर्स आ रहे हैं बस. और हमें मिल रहा है आधे से भी कम दिन बिकॉज मेरी 2 घंटे की ट्यूशन्स भी होती हैं विच आई डेफिनेटली कैन नॉट मिस एंड आई हैव एग्जाम्स टू. एंड यू नो व्हाट, हमारे स्कूल वालों ने हमेशा हमें पैम्पर करके रखा जस्ट लाइक अ पैम्पर द स्टडी बेड. लाइक हमेशा हमें पेपर के बीच में गैप दिया, 1 दिन का 2 दिन का. बट नाउ सडनली दे आर सेइंग बेटा हर रोज पेपर है, तुम छुट्टी कैसे लोगे प्रिपरेशन के लिए? हाउ एम आई सपोज्ड टू मैनेज दैट? आई वाज नॉट रेडी फॉर इट. कोई क्या मुझसे पूछेगा मुझे पेपर देना है कि नहीं ऐसे, बिकॉज मैंने पहले नहीं पढ़ाई की. I took off from school. स्कूल की छुट्टी ली मैंने पर मैंने पढ़ाई नहीं की. अब मेरे स्कूल का काम भी पेंडिंग है और पढ़ाई. So what do we learn? Don't be like Vaishnavi. Don't take a स्कूल की छुट्टी and then waste that day too and not study. साथ में आपकी टीचर भी ऑफेंड होती है. I mean at least मेरी वाली तो हो जाती है. Whatever, it's Sunday, it's like lunch time right now. I am going to start studying English. I hope so मैं अच्छा कर लूँ. I don't know, there's something about English and business studies. They seem like the easiest subject. मार्क्स उसी में नहीं आ रहे होते मेरे. BST में मैम वर्ड्स NCERT में कॉपी पेस्ट कर दूँ, नहीं हो रहा वो मुझसे. खैर इसके बारे में चर्चा करेंगे बाद में. Let's study now. So the first step to start good preparation was to check the syllabus, of course, and then मैंने लॉ स्प्रिंग को read करना start किया and I realized that class 12th के English के chapters are far better than the class 11th के chapters. Like what the hell was We Are Not Afraid to Die? Like what is the point of all the details कि वो कौन सी ship से कहाँ पर गए? इतनी details में सिर्फ अपनी short story long में बताती हूँ. I don't want to read a chapter like that. But in class 12 the chapters are good with morals, with like interesting, sad and happy stories. So it's good I feel. One thing about English chapters good हो या bad, हमेशा जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं दोज आर लाइक अनएक्सपेक्टेड. किसी भी चैप्टर्स को कोलैब कर दिया जाता है एंड देन समहाउ द क्वेश्चन इज़ फ्रॉम सम ब्रीफ डिटेल, कुछ बताओ, समथिंग लाइक दैट. सो आई एम क्वाइट स्केर्ड बिकॉज बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आती हैं इंग्लिश के एग्जाम में एंड आई हैव टू लाइक ऑन द स्पॉट चैप्टर से रिलेटेड लिखना है, दैट टू इन अ वे दैट इट इम्प्रेसेस द टीचर. एंड या इफ वी कैन इग्नोर द चैप्टर फॉर वंस वी आर नॉट इग्नोरिंग द कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज जो इतना बुरे आते हैं. लाइक सारे ऑप्शन सही लग रहे होते हैं, फिर मुझे तो सारे गलत लग रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. Before moving on, if you're in class 11th or 12th and you have opted for commerce, then accountancy, economics, maths and business studies की तुम्हारी टेंशन मैं बिल्कुल ख़त्म कर देती हूँ. प्लीज़ एक्सपीरियंस फैकल्टी है PW की and they have batches for you. Uday Pro 2026 Commerce and Uday 3.0 2026 Commerce is a great batch for you all. And class 12th के लिए you have Parishram Pro 2026. Also उनका CUT का रिजल्ट अगर तुम्हें नहीं पता है, just check it. How great is it? I mean उनके बैच के फीचर्स आर really good, like live and recorded classes with unlimited views, weekly assignments और DPPs मिलते हैं with 24/7 doubt support. And अगर तुम प्रो बैच लेते हो then you get more facilities like bridge course मिलता है, entrepreneurship lecture access, hard copies, access to all upcoming batches and PW की best faculty. Go purchase this batch if you already haven't. उनकी monsoon sale is live. Also use my coupon code to get some extra discount. Okay, so it's night right now and for some reason it has been happening like lately a lot. Before every English exam, let it be my UT1, let it be this UT2, मुझे सोना होता है. पता नहीं क्यों दिन में मुझे नींद आ जाती है. somehow it's always on the sofa. मैं सो जाती हूँ पढ़ते पढ़ते. पता नहीं कुछ होता है, हर बार मैं सो रही हूँ इंग्लिश एग्जाम के पहले. एंड दिस इज़ बैड बिकॉज नाउ मेरा सिलेबस बच रहा है एंड आई हैव नॉट कंप्लीट माई होमवर्क ऑल्सो. तो मुझे अभी इट्स नाइट राइट नाउ, आई हैव टू डू माई होमवर्क एंड कंप्लीट इंग्लिश सिलेबस. God, please give me some energy. Hi, I'm back from school. It's 4:30 right now and क्लास 12th के UT2 का फर्स्ट एग्जाम फाइनली हो चुका है एंड इट वाज डेफिनेटली समथिंग. आइसक्रीम खाते खाते बात करते हैं. हाउ वाज माय डे इन स्कूल. देखो इंग्लिश का पेपर इट वाज फाइन. आज मेरे जब आंसर डिस्कस हो रहे थे तो मेरे MCQs सही गए, तो मेरे क्वेश्चन आंसर गलत चले गए. मतलब कुछ ना कुछ गलती तो मुझे करनी है डेफिनेटली. बाकी इनविटेशन में भी शायद 1-2 मार्क्स एक मार्क कट सकता है, पर वो मेरा ही नहीं, पूरी क्लास का ही कटेगा, हर किसी का, बिकॉज इनविटेशन में वो चीज़ काफ़ी ट्रिकी थी और हमें पता नहीं थी. इट्स 4:30 ऑलरेडी और कल मैं अराउंड लाइक 1 और 1:30 तक जगी थी और आज मेरा कोई प्लान नहीं है इतनी रात तक जगने का बिकॉज देन सुबह मुझे टाइम से ही उठना होता है. दो इट डिड नॉट इफेक्ट मी कि मुझे से नींद आ रही है कुछ भी, बट स्टिल इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, यू नो. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग दिस अमूल के अमेरिकन नट्स वाली आइसक्रीम.
and I think I like it, so you can give it a try. टॉकिंग अबाउट 3 चैप्टर, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग आ रहा है. प्लानिंग मुझे थोड़ा बहुत पता है. ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग इज़ लाइक बिल्कुल नहीं आइडिया. स्टाफिंग फिर भी हमने स्कूल में करा है कुछ टाइम पहले, तो वो शायद हो सकता है. बट ऑर्गेनाइजिंग का भी बहुत दिक्कत है, सो वी रियली नीड टू हैव टू स्टडी. ऑल्सो मुझे अभी ट्यूशन का होमवर्क भी करना. आई लाइक ऑलवेज ईट आइसक्रीम फ्रॉम द ब्रेक, मतलब नॉट ऑलवेज बट मोस्टली. कभी नहीं होता कि आइसक्रीम गिर जाए, बट वाइल आई वॉज रिकॉर्डिंग इट जस्ट हैड टू. पता नहीं आइसक्रीम कहाँ से खुल गई, क्या हुआ, वो गिरने लग गया. एंड आई वाज सिटिंग ऑन माई बेड एंड रिकॉर्डिंग दिस. सो येस, मिस हैपनिंग, मिस एडवेंचर तो मेरी ज़िंदगी में होता ही रहता है. Just did finish like organizing and it's 11 right now. अभी भी 2 चैप्टर बच रहे हैं. डिड मैं अकाउंट्स का होमवर्क. मैं अपनी मैथ्स ट्यूशन भी गई थी 2 घंटे के लिए. मतलब मैंने अभी कॉफ़ी पी है. डॉक्यूमेंट जेमिनी पे सर्च किया कि कॉफ़ी हमें 6 घंटे पहले पीनी चाहिए सोने के. मेरे पास अभी 6 घंटे सोने के लिए भी नहीं, जितने बजे मैं सोऊंगी अपेरेंटली. एंड या आई वॉज प्लानिंग टू स्किप माई डिनर विच इज़ समथिंग आई नेवर डिड, बट डेफिनेटली माई मदर डिड नॉट लेट मी. सो येस, गोइंग टू ईट या ईट दैट, मान दो जो भी मानना है. एंड रही बात चैप्टर्स की, आई एम गोइंग टू डू दैट. माई हेड इज़ एकिंग एक्सट्रीमली, बहुत ही ज़्यादा. आई डोंट नो वाई. rather study and yep, I just did my journal जो मुझे दिन में करना होता है, एक्चुअली मैंने रात में करा वो. I'm back from school and if you think that I look extremely tired and sleepy, just know आज मेरा BSc का पेपर था जो कि अच्छा नहीं गया. And it's 4 right now, you know, 4:30 what time is it to sleep, but we can't sleep because I have an exam tomorrow of accountancy. खैर पेपर का भाई देखो, आई थॉट कि पेपर ठीक गया है. आई नो कि बहुत अच्छा नहीं गया है, बट ठीक गया है पेपर. अनटिल मैम ने पेपर डिस्कस करा क्लास में एंड आई रियलाइज कि पेपर बहुत बुरा गया है. या काफ़ी दुख मना चुकी हूँ मैं ऑलरेडी. सो इट्स टाइम टू फोकस ऑन अकाउंट्स राइट नाउ बिकॉज 2 घंटे बाद मेरी ट्यूशन भी है. आई नीड टू गो देयर टू एंड डू माई अकाउंट्स टू. 2 दिन से मैं अच्छे से रात में सो नहीं पाई. इट्स लाइक 5 to 6 आवर्स की स्लीप मिल रही है बस मुझे, विच इज़ लो फॉर मी एटलीस्ट. अब वैसे भी इन जनरल भी कम है. ऑल्सो अब ये 2 दिन तक और चलेगा बिकॉज रेगुलर पेपर हो रहा है. मैं 13 years ऑफ लाइफ कभी ऐसा नहीं हुआ, मतलब स्कूल लाइफ ऐसे कभी नहीं हुआ है. स्लीप डिप्राइव्ड हूँ. ऑल्सो कॉफ़ी पी के मुझे नींद आती है, तो कॉफ़ी इज़ ऑल्सो नॉट वर्किंग फॉर मी. कभी कभार अपनी ज़िंदगी को देख के मुझे एक्चुअली लगता है कि भगवान रियली सेड हेल्प योर सेल्फ, लेट्स हेल्प माई सेल्फ. ट्रस्टिंग गॉड अ लिटिल टू मच लेटली, जब से मेरे एग्जाम शुरू हुए हैं. इस बिकॉज इतनी केयरलेस कब से हो गई मैं. While doing this, I was just wondering how different my life would have been if I was a 13-14-year-old boy. I mean, I hate on life. Life hates on me. Wow. So cool, honestly. I mean, I wouldn't have even cared how my hair looks because am I not the ruler of this world? After doing the most important things in my life, I came to this less important things which is cash flow statement, जो कि मेरे कोचिंग सेंटर में अभी तक नहीं हुआ है. I'm just kidding, वो most important वाली line. It was just a lame joke, guys. Please try and understand. And फिर मैं कोचिंग सेंटर गई. Yes, वहाँ पे कुछ और चल रहा है, but मैं मिस नहीं कर सकती हूँ because UTs का बहाना देना सर को, he hates it. Because I am daydreaming my life after exams, जबकि मुझे पता नहीं है मेरी life with exams कैसी चल रही है. मतलब what? I've been romanticizing and being delusional about what all I am going to do after exams, how my life is going to be and what all fun I am going to do. मुझसे cash flow statement नहीं हो रहा है वैसे अभी just, और इतनी सुंदर handwriting भी gonna ignore. Oh my god. Can somebody tell me why looking at myself in the camera is so interesting suddenly, and how this curtain in front of me looks so beautiful? This is the curtain in context. My mother is going to kill me for this. We'll just take a moment of appreciation for this video because now this video actually looks like a study vlog, which it low-key is because it's an exam week vlog sort of, you know. And yes, since I had to start from the basics, मुझे basic मतलब basic से शुरू करना था. तीनों एक्टिविटीज़ में क्या क्या एक्टिविटीज़ आती हैं, कैसे डालते हैं, सब कुछ सीखना था. बिकॉज मेरे अभी कोचिंग सेंटर में वो नहीं हुआ था. जब स्कूल में हुआ था तब मेरे सर के ऊपर से वो चीज़ निकल गई थी. मतलब आई रिमेंबर डूइंग इट बट आई डोंट रिमेंबर डूइंग इट.
ओके इट्स ट्रू राइट ना, पहली बार मैं इतनी लेट तक जगी हूँ एंड मुझे काफ़ी थोड़ा सा बुरा लग रहा है. आई वॉज बिंज वॉचिंग माई वीडियो विच इज़ अ वेरी बैड थिंग टू डू जब तुम्हारा पेपर हो उससे पहले. ऑल्सो मुझे बहुत गट फीलिंग आ रही है कि मैम कुछ तो डिफरेंस देंगी दोनों चैप्टर्स में से किसी का, बिकॉज हमारी मैम लव्स टू गिव थ्योरी एंड ऑल दैट. सो मे बी हमारे 20 मार्क्स के पेपर में भी कोई ना कोई डिफरेंस आ जाए. माई हेयर लुक्स रियली बैड राइट नाउ एंड देयर वॉज दिस वन मच्छर इरिटेटिंग मी अ लॉट. And it's not even the worst part because आज से मेरा accounts का exam and for some reason ironically ever since I've started for like recording and filming my exam week मेरा एक भी exam अच्छा नहीं जा रहा है and accounts का भी बुरा गया you can say like kind of. but इसमें मेरी गलती होके भी नहीं है somehow I feel like I did practice I know. हुआ क्या, मुझे लगा मेरा आंसर सही है विच यूजुअली डज नॉट हैपन. मुझे पता चल जाता है कि मेरा आंसर गलत है नहीं है. इसमें पास है जिसमें मेरा आंसर भी मैंने जो जर्नल एंट्री पास किया वो भी मुझे ठीक लग रही है, मुझे कुछ गलत लग भी नहीं रहा बट समहाउ इट वाज रॉन्ग. मेरा फंडामेंटल्स का भी क्वेश्चन गलत गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट का भी क्वेश्चन गलत ही गया देखा जाए तो. And it's not good. I assumed that in 12th we are going to be serious and I'm going to like come back wala this is going to be my time. 12th mein to of course one needs to be serious but it does not happen like that. I don't know why. This is my accounts ka paper and the next day I had matrices and determinants which is maths ka paper exam and I could not record things because I was a little too occupied with my own thinkings and a lot of stuff. It was not a good day guys. Just agar main summarize karu to ek word mein it was really not a good day maybe. Hi, so it's 24th July, maths exam भी ख़त्म हो गया है, second last exam is over and finally there is a break in economics because बीच में CS Python इन सब का एग्ज़ाम्स है राइट. तो अब मेरे पास थोड़ा गैप है एंड मैं स्कूल से आ चुकी हूँ हाफ डे में. इट्स 11 AM राइट नाउ. मैं स्कूल से इसलिए आ गई बिकॉज मैं रात में आई एक्चुअली डिड नॉट स्लीप ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न. मतलब डोंट आस्क मी द रीज़न, आई डोंट नो व्हाई. इट इज़ वेरी कोई सेंस भी नहीं बनेगा इफ आई से समथिंग एंड आई होप यू डोंट रिलेट विद व्हाट आई एम गोइंग टू से. But I think I've been disappointing myself lately and it is getting out of hands at this point because I just gave the worst exams of my life. I feel like 12th के भी and most probably life के I feel like इतना feel नहीं हो रहा है but I'm not able to articulate what I'm experiencing right now but it is very bad because the fact that accountancy was the only subject जो मैं कह सकती हूँ कि हाँ चलो यार ये वाला topic मुझे समझ नहीं आया या फिर this question was very unexpected so नहीं हुआ. बट द अदर सब्जेक्ट्स उसमें इट वॉज ईजी इफ़ नॉट ईजी इट वॉज इतना कि मैं कर सकती थी. इट कुड हैव बीन गेस्ड, इट कुड हैव बीन डन विद मोर प्रैक्टिस बट आई डिड नॉट डू एंड वॉज नॉट अप टू द मार्क. एनीवे टॉकिंग अबाउट मैथ्स फॉर राइट नाउ, मैंने जब क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे इन घर में या फिर क्लास में व्हेन आई एम डूइंग आई एम द वन हु इज़ आंसरिंग, आई एम द वन जो घर पे भी हो रहे हैं क्वेश्चंस बट व्हेन एग्जाम में वही सेम क्वेश्चन आया मुझे आंसर भी याद था बिकॉज मैंने रात में ही करा था. वो मुझसे नहीं हुआ, मुझे नहीं पता रीज़न और टाइम भी इतना नहीं होता. तुम 2-3 बारी करके देख लो ये समथिंग लाइक दैट. आई डोंट नो हाउ डिड इट हैपन एंड आई एम मिसिंग ओल्ड वैष्णवी. आई गेस आई थिंक आई एम मिसिंग द फैक्ट दैट आई यूज्ड टू स्टडी कितना ज़्यादा या फिर कितना नॉर्मली भी एंड इट वॉज नॉट अ बर्डन समथिंग और लाइक कि मैं एग्जाम के कुछ घंटे पहले पढ़ रही हूँ या एक रात पहले पढ़ रही हूँ. इट वॉज नॉट लाइक दैट. आई वॉज प्रिपेयर्ड, आई यूज्ड टू रिवाइज, इफ नॉट रिवाइज आई यूज्ड टू स्टडी इन द डे एंड समथिंग एंड रात भर तो नहीं सकती थी. माई स्लीप साइकिल वॉज गुड, द वे आई यूज्ड टू स्टडी वॉज गुड, माई रिजल्ट एंड मार्क्स वॉज गुड. इट वॉज शोन. अभी आई एम एट द स्टेज ऑफ बच्ची कर सकती है बट करनी है सॉर्ट ऑफ समवॉट लाइक दैट. आई एम सॉरी इफ यू रिलेट, इट इज़ नॉट वेरी गुड टू फील दैट and I hope we and I overcome this because it is high time. July is ended and I think अगस्त से ही अभी start होगा. जुलाई में पेपर ही मेरा एक बच रहा है, other things to plan. तो अगस्त से ही I am going to start this and focus on myself a little more because अब हाफ ईयरली आने वाले हैं, ऐसे प्री बोल्स आ जाएंगी, समर वेकेशंस भी जा चुकी हैं, दिवाली वेकेशंस आ जाएंगी, जितना भी होगा तो टाइम तो जा ही रहा है. सो वीडियो आई थिंक बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी. इफ आई हैड मोर थिंग्स इन दिस आई विल एंड दिस वीडियो राइट हियर. आई होप you feel motivated to study and don't be Vaishnavi. Like Vaishnavi is not really as great as you think she always is and of course she is but she is not like that always and it gets hard sometimes. It really does. So, but yeah, do subscribe to my channel if you're new here and yeah, binge watch my other videos if you have time and I do post some informative videos on my channel too. I'll see you in the next one. Till then, take care and bye bye.